Hello, students. My name is Karan. Today we are talking about the topic of polynomials. What is polynomial? What is polynomial? A single variable function. A single variable function which has many curves, a single line, a curve, path of a curve. Okay? A single variable function. Like this, 2x plus 3 has only a single variable x. Like this, x square plus 3x plus 2, it has only a single variable x. Like this, x cube plus 3x square plus 2x plus 1, that only has a single variable is x. Okay, the single variable function is called as what? Polynomial. Okay, a single variable function has how much? Maximum degree of a variable is called, sorry, maximum power of a variable is called degree. What it calls? Degree. Degree. What is degree? Maximum power of variable. Maximum power of variable. Here power maximum is what? 1. So its degree is 1. Degree is 1. Here maximum power is what? 2. Degree is 2. Here maximum power is 3. That degree is 3. If maximum power is 1 or degree is 1, it's called linear polynomial. What it called? Linear polynomial. It has degree 2. That call is quadratic. Okay. That call is what? Quadratic. Quadratic. And if has a degree is 3, that call is cubic. What it calls is cubic polynomial. Okay, so degree 1 is called is what? Linear polynomial. Degree 2 is called is what? Quadratic polynomial. And degree 3 is called is what? Cubic. As similar, degree 4 is called bicubic, much more. Okay, this degree 2 is called also quadratic, and if equal to 0, if polynomial is equal to 0, is called equation. So degree 2 will equal to 0, like this, x square plus 3x plus 2 equal to 0 is called quadratic equation. What it calls is quadratic equation. ओके, हम जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, जीरोस. व्हाट इज जीरोस? जीरोस अ पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल्स वैल्यूज इज जीरो. ओके, लाइक दिस आई एम टेलिंग. नाउ व्हाट आर जीरोस? What are zeros of polynomial? A point where the value of polynomial is 0. If we apply this, x square plus 3x plus 2 equal to 0. Okay, I will put x equal minus 1. So minus 1 square plus 3 into minus 1 plus 2 equal to 0. Minus 1 square is 1. 3 into minus 1 is minus 3 plus 2 equal to 0. 1 minus 3 is minus 2 plus 2 equal to 0. Okay, because plus minus minus, 3 minus 1 2, bigger value is 3, so that's value comes as minus 2 plus 2 equal to 0. So 0 equal to, that satisfies the equation. That point which satisfies the equation, that is called as 0. What it calls? 0. If I put x equal minus 2, put the value of minus 2 so square, 3 into minus 2 plus 2 equal to 0. Okay, minus 2 square is what? 4. 3 into minus 2 is minus 6 plus 2 equal to 0. 4 minus 6 is what? Minus 2. Minus 2 plus 2 is equal to 0. So it's 0 equal to 0. Okay, that is also called as what? Zeros. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं, वो पॉइंट जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होता है? जीरो, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. ओके, दैट कॉल इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ डिग्री जितनी होगी उतने ही जीरोस होंगे. नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज इक्वल टू डिग्री
of polynomial. Okay, number of zeros are always equal to degree of polynomial. मतलब यहाँ डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने आ रहे, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती तो जीरोस कितने होते, 1। एक ही पॉइंट होता है जो इसको जीरो बना सकता था उस पॉलिनोमियल को, ज्यादा नहीं। अगर डिग्री 3 होते तो जीरोस भी कितने होते, 3। 4 होती तो 4 जीरोस, ठीक है। कभी कभी जीरोस ऐसे होते हैं जो रिपीटेबल भी होते हैं, कभी कभी जीरोस ऐसे होते हैं जो रिपीटेबल भी होते हैं। क्लियर है बात, है ना। अब इसमें एक बात समझिए कि इन जीरोस को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। बेसिकली दो टर्म्स होती हैं इसको पता करने के लिए। एक टर्म तो होती है हमारी क्वाड्रिक फॉर्मूला, एक टर्म होती है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हम समझते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे करते हैं। ओके, हाउ कैन वी यूज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, दैट्स if a quadratic polynomial, quadratic, I am telling about quadratic, not about linear, not about cubic. Okay, quadratic, general quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, and equation is equal to 0. Okay, there is x square coefficient is a, x coefficient is b, and constant is c. Okay, so if I am telling an equation is 3x square plus 4x plus 1 equal to 0. Here we can compare what is the value of a, 3, b value is what, 4, and c value is what, 1. Okay, अब मुझे इसके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है। कौन सा मेथड लगा रहा हूं मैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इस वर्ड से समझना है हमें इस बात को। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, मिडिल में कौन सी टर्म है, 4x। वी कैन स्प्लिट लाइक दिस कि बोथ साइड वी कैन टेक अ कॉमन वैल्यू, है ना। टर्म को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, एक तरह से फैक्टराइज कर रहे हो आप पॉलिनोमियल। समझिए, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, क्या रूल है। फर्स्ट a इंटू सी, a इंटू सी एक वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 आएगी। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मतलब सेम साइन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डिफरेंट साइन है तो ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसके इस तरह के फैक्टर करने, है ना, we have to convert this value into a factors, that after that if the sign is positive then we will get the value of b by addition, or if the sign is negative we will get this value b by subtract. Okay, oh no, look at this, 3 into 1 is 3, value is positive, तो 3 के ऐसे फैक्टर करो, है ना, convert this into a factors that by addition value comes as 4, है ना। तो 3 into 1 मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है, 3 and 1 ऐड करने पर क्या आ रहा है, 4। तो दैट वैल्यू इज स्प्लिटेड। इस 4x को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। इस 4 को हम क्या लिख लेंगे, 3 प्लस 1, क्योंकि ऐड करने पर चाहिए ना, बिकॉज वैल्यू कम्स इज पॉजिटिव, तो ऐड करने पर चाहिए। तो लुक एट दिस, 3x स्क्वायर, आई विल स्प्लिट दिस 4, 3 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ 4 is splitted by 3 plus 1, x अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर, 3 into x 3x, 1 into x x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो के साइड बने, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है, जो वैल्यू दोनों से डिविजिबल है वही कॉमन, मतलब जिसमें आप दोनों का डिवाइड करें, 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो 3 कॉमन आ रहा है, x दोनों में आ रहा है तो x आ जाएगा। अब बचा क्या, अगर अंदर यहां पर क्या बचा, तो 3x स्क्वायर किससे, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड कर, 3 से 3 कैंसिल, x की एक पावर कैंसिल, क्या बचा, x बचा, कौन सा साइन, प्लस। अब फिर देखिए 3x इससे डिवाइड करूंगा, 3x, x से x भी कट गया, 3 से 3 कितना बचा, 1, 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दो के साइड से कुछ नहीं, 1 आ रहा, कुछ नहीं आता तो क्या आता, 1 आता, वैल्यू बिकम सेम। अब आप देखिए ये पूरा ये दो का सेट बन गया है, दिस प्लस दिस, इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, यहाँ पर 3x बचा, यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1, तो वैल्यू 3x प्लस 1।
स्प्लिटिंग ऑफ मॉडल टर्म से इस पॉलिनोमियल को मैंने इस फैक्टराइज में कन्वर्ट कर, अब ये वैल्यू इक्वल टू क्या है, जीरो। क्या है वैल्यू, ये इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक बात को समझिए कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो जीरो कब होगा, या तो ये वैल्यू जीरो होगा कि जीरो इंटू थ्री एक्स प्लस वन हो रहा होगा, तभी वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो। या फिर ये होगा कि ये वैल्यू एज इट इज हो और ये वैल्यू इंटू जीरो हो रही हो, तब जाके इक्वल में जीरो। मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो या तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हुआ होगा, या फिर कह सकता हूं मैं थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हुआ होगा। क्लियर है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, देन एक्स वैल्यू इज व्हाट, माइनस वन। और if 3x plus 1 equal to 1, then 3x equal is what, minus 1. x is what, minus 1 by 3. Okay, we can verify this, हम इसे verify भी कर सकते हैं। How can we verify? Put the value in this equation. Suppose we put x equal minus 1, इस इक्वेशन में डालते हैं। अगर ये जीरो आ गया, ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, इट मीन्स दैट इज द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। ये फाइनली हमने इसको जीरो करके क्या पता करे हैं, ये जीरोस क्या पता करे हैं, ये करेक्ट है, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेट्स अप्लाई दिस, वेरीफाई इट। तो वेरीफाई एक्स की जगह माइनस वन पुट करना, थ्री इंटू एक्स इज व्हाट, माइनस वन, सो एक्स स्क्वायर इज माइनस वन स्क्वायर, फोर एक्स इज व्हाट, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, थ्री माइनस वन स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वन स्क्वायर इज व्हाट, 4 into minus 1 is minus 4 plus 1 equal to 3 ones are 3 minus 4 plus 1 equal to 3 minus 4 is what, minus 1. So minus 1 plus 1 equal to 0, that value becomes 0 equals 0. So it's verified. Understood? Verify हो रहा है नहीं हो रहा, क्लियर हुई बात। तो एक पहला मेथड ये था जिससे आप जीरोस को पता कर सकते हो, जीरोस को आइडेंटिफाई कर सकते हो by converting this polynomial into a factors and equalize to be 0. Because the value is 0 only possible if x plus 1 0 or 3x plus 1 equal to 0. एक तो 0 होना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा, तो कोई एक तो 0 हुआ ही होगा। हमें ये दोनों पॉइंट्स मिले, जितने जीरोस मिलते हैं, जितनी डिग्री होती, डिग्री 2 थी, जीरोस कितने हैं, ये एबीसी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए, जो इसका सेकंड मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं। उसी से भी देखिए यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको अप्लाई करके, यू कैन नोट डाउन दिस, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स का भी पता चलता है, टॉपिक हमारा नेचर ऑफ रूट्स भी है, जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू को पहले ही पता कर लेते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले से जीरो से माइनस बी कितना था, फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर, फोर स्क्वायर माइनस फोर, ए इज व्हाट, थ्री एंड सी इज व्हाट, वन अपॉन टू, ए इज व्हाट, थ्री। ओके, माइनस फोर प्लस माइनस फोर स्क्वायर इज व्हाट, 16 minus 4 3 जा 12 upon 2 3 जा 6. Now minus 4 plus minus 16 minus 12 is what, 4 upon 6. 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा, हाँ? Then minus 4 plus minus क्या रह जाएगा यहाँ पर, रूट 4, रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 6. नाउ हमारे जीरोस कितने थे, दो जीरोस में क्या होगा, पहला जीरोस प्लस से निकलेगा, दूसरा जीरोस माइनस, तो minus 4 minus 2 upon 6, that value is x, that is x, और x is equal to minus 4 plus 2 upon 6, है ना। Now minus 4 minus 2 is minus 6, minus 6 upon 6 is equal to is what, minus 1, है ना। Okay, that value becomes is what, minus 1, that's x. Okay, और minus 4 plus 2 is minus 2,
x इज इक्वल टू -2/6 दैट्स -1/3। देखो वही जीरो था, 3x + 1 आया था उधर, -1/3, एक -1 अपन ने पुट करा, वही आ गया। तो दैट इज सेकंड मेथड। ओके है ना। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।